नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे we will talk about the biggest pain of manufacturing sector, which is higher process cost. So in this session we will discuss some important reasons of higher process cost. Ideally, in any manufacturing unit there should be only two mini factories within the factory. One is forming process and second is finishing process. Forming process means where we are creating the raw shape of the product, like casting, forging, press soap, like this. And finishing process means where we are giving the finished touch to the product, like painting, plating, weld soap, assembly, like this. And these forming and finishing processes may be one or more than one. But practically we have some non-value-adding activities between these forming and finishing processes. Like after press soap we do the cleaning, grinding, and after injection molding we do the flash cutting. After machining we do the deburring. And unfortunately, we establish these non-value-adding processes as a process. That is the biggest design error of the manufacturing setup of the factory. Because basic principle of manufacturing says, if we have established any non-value-adding activities or any non-value-adding process as a process, so we can't reduce the resources of that processes. Even these resources increase according to the sales ratio. And if we see other side, so one practical truth is we can't eliminate these non-value-adding processes overnight. So now what should be done? So यहाँ पर दो स्ट्रेटजी पर हमें काम करना होगा. One is short term strategy and second is long term strategy. सो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे कि दीज नॉन वैल्यूएडिंग प्रोसेसेस शुड बी फॉल अंडर द ट्री ऑफ फॉर्मिंग और फिनिशिंग डिपार्टमेंट. उससे क्या होगा कि जब उसको ये पता होगा, एटलीस्ट ही शुड बी अवेयर, ओनर, प्रोसेस ओनर शुड बी अवेयर कि वो जो बना रहा है, जो प्रोडक्ट वो क्रिएट कर रहा है, उस पर कितना आगे रिवर्क करना पड़ रहा है, कितना आगे उसको ग्राइंडिंग करना पड़ रहा है, और कितने रिसोर्सेज, कितने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हम उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है लगा रहे हैं. और एंड कस्टमर इज नॉट पेइंग द अमाउंट फॉर दीज रिसोर्सेज, फॉर दीज नॉन वैल्यू एडिंग एफर्ट्स. सो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में हम ये करेंगे कि हम जो हमारे नॉन वैल्यूएडिंग प्रोसेस है, इनको हम उन प्रोसेस के नियरेस्ट रखेंगे. उससे क्या होगा कि एक तो जो रिवर्क होगा वो उसी प्रोडक्ट के, उसी पार्ट के ऊपर किया जाएगा जहां पर एक्चुअली रिवर्क की रिक्वायरमेंट है. और जब हम उसकी एक सेपरेट ओनरशिप, अगर हमने उस नॉन वैल्यूएडिंग प्रोसेस की एक सेपरेट ओनरशिप दी हुई है, सो वो एक एज ए प्रोसेस स्टेब्लिश हो चुका होता है. सो अब उसके पास, उस बंदे के पास जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी पार्ट आएगा, वो हर पार्ट के ऊपर जो है रिवर्क करेगा, चाहे वहां पर रिवर्क की रिक्वायरमेंट हो या फिर ना हो. सो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में दिस नॉन वैल्यूएडिंग प्रोसेसेस शुड बी fall under the tree of forming और finishing process. एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में फिर हम एक CFT बनाएंगे जो उस पर काम करेगी कि नॉन वैल्यूएडिंग एक्टिविटीज को कैसे हमें एलिमिनेट करना है. सो दैट इज द वे टू कंट्रोल द प्रोसेस कॉस्ट. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ हायर प्रोसेस कॉस्ट इज actually we do the two types of activities in our manufacturing setup. One activity is within the process and second activity is surrounding the process. Within the process means our processes, our operations जो हम मशीन के ऊपर करते हैं,
एंड सराउंडिंग द प्रोसेस मीन्स हमारा मेटेरियल मूवमेंट, मेटेरियल स्टोरेज, WIP, transportation. So these activities are the surrounding the process activities. And our maximum case study says our 60 to 70% resources involved in surrounding the activities. And unfortunately हमारे engineering efforts in surrounding activities में almost zero होते हैं. So that is a very painful truth. हमारे सारे इंजीनियरिंग एफर्ट्स सिर्फ हमारे प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर लगे होते हैं, बट वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर मटेरियल कैसे मूव करेगा, कैसे उसकी हम इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, कितनी हमारे पास WIP स्टोरेज लोकेशंस होगी, अगर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जब मटेरियल मूव करेगा तो वो बाय हैंड पैलेट मूव करेगा या बाय फोर्कलिफ्ट मूव करेगा या बाय सूट्स मूव करेगा या फिर बाय कन्वेयर मूव करेगा. सो ये जिस तरह की इंजीनियरिंग उसके ऊपर होनी चाहिए उस तरह की इंजीनियरिंग हम लोग नहीं करते हैं. जैसे अगर हम फोर्कलिफ्ट से मूवमेंट कर रहे हैं तो गैंगवे विड्थ शुड बी 3 to 3.5 मीटर. अगर हम हैंड पैलेट से मूव कर रहे हैं तो गैंगवे विड्थ शुड बी 1 to 1.5 मीटर. सेम हमारे पास WIP स्टोरेज लोकेशंस कितनी होनी चाहिए और जो हम WIP स्टोरेज करेंगे उसमें हम कितना वर्टिकल स्टोरेज यूज करेंगे, किस तरह के हाई राइज रैक यूज करेंगे. अगर हम हाई राइज रैक यूज कर रहे हैं तो हमें फोर्कलिफ्ट यूज करनी है या रीस्ट्रक यूज करना है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि जब हम उनको एक इंजीनियरिंग वे में और एक साइंटिफिक वे में एड्रेस नहीं करते तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन में बहुत सारे एरर रहते हैं, बहुत सारे प्रोसेस एरर होते हैं जिससे हमारी प्रोसेस कॉस्ट इंक्रीज होती है.